أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب۔ کیا وہ شخص جو رات کے اوقات میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں، اور وہ آخرت کے دن سے ڈرتا ہے، اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہے، کہہ دیجئے کیا علم والے اور جاہل لوگ جو ہیں وہ برابر ہیں؟ یقیناً نصیحت والے عقل مند لوگ ہی نصیحت جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ نہایت عزت کے لائق سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، علم انسان کی زندگی کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنی انسان کے جسم کے لیے روح کی ضرورت ہے۔ جیسے انسان کو زندہ رہنے کے لیے کھانے اور پینے کی ضرورت رہتی ہے، اسی طریقے سے انسان کی زندگی کے لیے علم کی بھی ضرورت رہتی ہے۔ دنیا میں سورج کی حرارت اور روشنی اور ہوا اگر موجود نہ ہو تو انسان کی زندگی ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر انسان کے پاس علم موجود نہ ہو تو انسان کی زندگی تقریباً ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہ چیزیں جس طریقے سے انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہیں، میں سمجھتا ہوں اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ انسان کے پاس علم موجود ہو اور جہالت جو ہے وہ موجود نہ ہو۔ اس لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ علم انسان کی زندگی کی اصل زندگی ہے، اصل جان ہے، اصل روح ہے۔ اس کے بغیر انسان کا جسم جو ہے وہ مردہ ہے۔ کیوں نہ ہو؟ اللہ تبارک و تعالی اس ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، رازق ہے اور معبود برحق ہے۔ اس نے اپنے بندوں کو اپنی توحید اختیار کرنے کا حکم دیا، اپنی اطاعت اور فرما برداری کرنے کا حکم دیا، شرک سے بچنے کا حکم دیا، اور انسان کبھی بھی نہ اللہ کی بندگی کر سکتا ہے، نہ ایک اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، نہ شرکیات، بدعات اور خرافات سے اجتناب کر سکتا ہے علم کے بغیر۔ اگر علم ہوگا تو انسان ان چیزوں کی پابندی کر سکتا ہے، اگر علم نہ ہو تو کبھی بھی ان چیزوں کی پابندی نہیں کر سکتا۔ گویا کہ اللہ کی بندگی کے لیے علم کا وجود انتہائی ضروری ہے۔ اسی لیے انسان کی حیات اور انسان کی زندگی علم کو قرار دیا گیا ہے۔ جہالت انسان کی موت ہے، اور انسان کی زندگی ایک مردہ جسم کی مانند ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ علم حاصل کرے۔ دنیا میں اگر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ہمارے پاس 3 قسم کے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں بہت سا عمل کرتے ہیں لیکن بغیر علم کے عمل کرتے ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہوتا، جہالت کی بنا پر وہ عمل کرتے ہیں، محنتیں بہت کرتے ہیں، مشقتیں بہت کرتے ہیں، اور اپنی وہ ساری محنت کو کامیابی کا راز سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ قرآن مجید کو دیکھا جائے، اس کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں نظر آتا ہے قرآن مجید ایسے لوگوں کو ضالین کے لفظ کے ساتھ جو ہے وہ مخاطب کرتا ہے کہ یہ گمراہ قسم کے لوگ ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم تو موجود ہے
لیکن وہ علم کے مطابق عمل نہیں کرتے. ان کا عمل جو ہے وہ علم سے مخالف ہوتا ہے. علم کچھ کہتا ہے، ان کا عمل جو ہے وہ کچھ بتلاتا ہے. قرآن مجید ایسے لوگوں کو مغضوب علیہم کہتا ہے کہ ان لوگوں پر اللہ کا غضب ہوا ہے کہ یہ علم بھی موجود ہے اور پھر جانتے بوجھتے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور شریعت کی جو ہے وہ خلاف ورزی کرتے ہیں. اور ان دونوں لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ کہف کے اندر یوں بیان فرمایا ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. کیا ہم تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں خبر نہ دیں جو انتہائی گھاٹا پانے والے ہیں اور جن کی ساری کوششیں دنیا میں بیکار ہو گئیں اور وہ یہی خیال کرتے رہے کہ ہم بہت عمدہ عمل کرتے رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری محنت جو ہے وہ برباد ہو گئی. حقیقت میں یہی لوگ اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں اور آخرت کے دن کا انکار کرنے والے ہیں. ایسے لوگوں کے تمام اعمال ہم بیکار کر کے رکھ دیں گے اور قیامت کے دن ان کے لیے ترازو بھی نہیں لگائیں گے، بغیر تولنے کے ایسے لوگوں کو جہنم رسید کر دیا جائے. یہ والین بھی ہیں اور مغضوب علیہم بھی ہیں کہ جنہوں نے غلط عمل کیے، یا تو علم نہیں تھا، جہالت کی وجہ سے غلط عمل کرتے رہے، اور یا علم موجود تھا پھر غلط عمل کرتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا غلط عمل کرنے کی بنا پر وہ یہی سمجھتے رہے کہ ہم نے بڑے خوبصورت عمل کیے ہیں، لیکن قیامت کے دن ہم ان کے لیے میزان بھی نہیں لگائیں گے، ترازو بھی نہیں لگائیں گے. ان کی نیکیوں اور بدیوں کو تولنے کی نوبت بھی نہیں آئے گی، بغیر تولنے کے ہی ایسے لوگوں کو جہنم رسید جو ہے وہ کر دیا جائے. اور تیسرے لوگ جن کے پاس علم نافع موجود ہے، نفع بخش علم موجود ہے، اور وہ اپنا عمل جو ہے اسی علم کے مطابق کرتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم یہ لقب جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تیرا انعام ہوا اور جنہوں نے والین کا رستہ اختیار نہیں کیا اور مغضوب علیہم کا رستہ اختیار نہیں کیا، نہ تو جہالت کی بنا پر غلط اعمال کیے اور نہ ہی علم آ جانے کے بعد غلط اعمال کیے، بلکہ جو ایک اللہ کا حکم تھا اور اس کے رسول کا جو حکم تھا اس کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر کرنے کی کوشش کی. فرمایا یہی لوگ ہیں، یہ جو جنتی ہیں اور جنت فردوس کے مالک ہیں، اور یہی لوگ دنیا میں بھی اور آخرت میں دونوں جہانوں میں کامیاب. یہاں سے معلوم ہوتا ہے علم کی کس قدر جو ہے وہ اہمیت ہے. سورہ عصر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا والعصر ان الانسان لفی خسر، مجھے زمانے کی قسم ہے تمام کے تمام انسان جو ہے وہ گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں. یہاں پہ اہل علم نے ذکر کیا ایمان والے لوگوں سے مراد کیا ہے؟ علم والے، کہ وہ علم حاصل کرتے ہیں اور اس علم کی بنا پر اپنا عمل کرتے ہیں. انہیں معلوم ہے اللہ کیا ہے، اللہ کی عبادت کرنے کا مطلب کیا ہے، اللہ کی توحید اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا کیا ہوتا ہے، رسول کی اطاعت کیا ہوتی ہے اور رسول کی نافرمانی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے. پھر وہ عمل صالح کرتے ہیں. عمل صالح ہوتا ہی وہ ہے وہ عمل جو اللہ نے بتلایا ہے اور اس کے رسول نے بتلایا، اس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں، اپنی منمانی نہیں کرتے ہیں، اپنی مرضی سے اللہ کی اور اپنے اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں. فرمایا یہ لوگ جو ہے وہ خسارے میں نہیں ہیں، باقی سارے کے سارے خسارے. یہیں پہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے جو قرآن مجید کی آیت ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ، جان لو اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. کہا
बाबू अल कौलु कब्ल अल इल्म कब्ल अल अमल या अल इल्म कब्ल अल अमल। लोगों, इल्म जो है वो अमल से पहले है। पहले इल्म होता है, फिर उसके बाद जो है वो अमल होता है, न कि पहले अमल होता है बाद में जो है वो इल्म होता है। इल्म हमेशा पहले होता है, अमल उसके बाद में आता है। लिहाजा हमने अमल करना होता है। जिस बात पे हमने अमल करना हो वो हमारे लिए जरूरी है कि उसका हमें इल्म भी हो। अगर इल्म नहीं होगा तो हम जो है वो जालिन की सफ में जो है वो नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक शामिल हो जाएंगे। और अगर इल्म आ जाने के बाद फिर हमने उस इल्म की मुखालफत की है तो अल्लाह ना करे फिर अल मग़ज़ूबि अलैहिम के अंदर जो है वो शुमार जो है वो हो जाएगा। लिहाजा दोनों तबकों से नजात हासिल करना इंसान के लिए इंतहाई जरूरी है, तब जाकर आखिरत में कामयाबी मिलेगी। इल्म, इसकी क्या फजीलत है, क्या कदर मंजिलत है। बेशुमार आयात और बेशुमार अहादीस मौजूद हैं। एक मशहूर किस्सा है, सुनन तिरमिज़ी के अंदर, अबू दाऊद के अंदर और दूसरी की रिवायात के अंदर मौजूद है। हजरत कसीर इब्न कैस रिवायत बयान करते हैं, कादिमा रजुलन मिनल मदीनति इला दिमश्क, एक आदमी मदीना से चला, मदीनतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीना मुनव्वरा से चला, इला दमिश्क, दिमश्क की तरफ पहुंचा। तकरीबन इसका फासला अगर आज के हिसाब किताब से देखा जाए तो कोई 1200 से लेकर 1300 किलोमीटर सफर बनता है। कराची यहां से मेरा लिए 1000 किलोमीटर है, 1200-1300 किलोमीटर जो है वो सफर बनता है। आप अंदाजा लगाएं, कराची का सफर ही ले लें, अगर इंसान अपने ऊंट के ऊपर, खच्चर के ऊपर या घोड़े के ऊपर या गधे के ऊपर सफर करता है तो कितनी मुशक्कत का सामना करना पड़ेगा, कितना वक्त जो है वो लगाना पड़ेगा 1100-1200-1300 किलोमीटर जो है वो तय करने के लिए। कहते हैं एक आदमी मदीना से चला, दिमश्क का सफर किया, इला अबी दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सहाबी रसूल अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचा और जाकर दरवाजा खटखटाया, सलाम दुआ हुई, हाल चाल पूछा तो कहने लगे मैं आपके पास आया हूं, मुझे पता चला है आपके पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जो आपने बराह रास्त सुन रखी है, वो हदीस में आपसे सुनना चाहता हूं। अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला पूछते हैं कहां से आए हो? कहा मदीना। कहा मदीना से आए हो दिमश्क में एक हदीस सुनने के लिए? अमा कदिम चली तिजारतिन, क्या कोई तिजारत करने की गरज से तो यहां पे नहीं आए? कहा नहीं। अमा जे तली हाजतिन, यहां इतना लंबा सफर तय करके आए हो किसी जरूरत और अपने किसी काम की गरज से तो नहीं आए? कहा मुझे कोई काम नहीं है सवाए इस काम के कि मुझे पता चला है आपके पास अल्लाह के रसूल की एक हदीस है, उस हदीस का मैं इल्म हासिल करने के लिए आपके पास आया। कहा अच्छा, सिर्फ एक हदीस सुनने के लिए 1200-1300 किलोमीटर का सफर तय करके आए हो ऊंट के ऊपर? सुनो फिर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, मन सलक तरीकन यल्तमिसु फीही इल्मन सलकल्लाहु बिही तरीकन इलल जन्नह। फरमाया जो इल्म हासिल करने के रास्ते पर चल निकलता है अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत के रास्ते पर चला देते। ये इल्म हासिल करना सिर्फ मदारस के तलबा का काम नहीं है, ये सिर्फ स्टूडेंटों का काम नहीं है, ये तमाम उम्मत का फरीजा है। तलबुल इल्म फरीजतुन अला कुल्ली मुस्लिम। ये आप स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं तो ये हदीस हर स्कूल की दीवार के ऊपर और दरवाजे के ऊपर और तकरीबन हर कॉलेज के दरवाजे के ऊपर जो है वो लिख रखी होती है। लोगों, इल्म हासिल करना जो है वो हर मुसलमान पर फर्ज है। हम समझते हैं नहीं, ये तो मिस्कीन, गरीब, यतीम जो बच्चे होते हैं बस उन्हीं का काम है वो चटाइयों पे जाकर बैठे और इल्म हासिल करें। ये सहाबी रसूल, ये मदीना का एक आदमी वो चलता है सहाबी रसूल के पास 1300 किलोमीटर का सफर तय करके, सिर्फ एक हदीस सुनने के लिए आता है। तो आगे से सहाबी रसूल फिर हदीस बयान करते हैं, सुनो फिर
اگر تم علم حاصل کرنے کے لیے نکلے ہو تو یہ آپ کا فرمان ہے، جو علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے پر چل نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلا دیتے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ أَوْ بِمَا يَصْنَعُ، فرمایا فرشتے جو ہے وہ طالب علم، ہر وہ بندہ چاہے وہ 20 سال کا ہے، 40 سال کا ہے، 80 سال کا ہے، وہ صرف یہ نیت کر کے چلا ہے کہ میں یہ مسئلہ سیکھنا چاہتا ہوں، میں یہ حدیث سیکھنا چاہتا ہوں، میں اس آیت کا مفہوم سیکھنا چاہتا ہوں، فرمایا فرشتے اپنے پر جو ہے اس آدمی کے پاؤں کے نیچے بچھاتے ہیں، اس کی چاہت اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، یا جو وہ چیز طلب کر رہا ہے اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، فرمایا فرشتے جو ہے وہ اپنے پر جو ہے اس آدمی کے پاؤں کے نیچے بچھاتے ہیں۔ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مدرسوں میں جو پڑھتے ہیں ان کے پاؤں کے نیچے فرشتے جو ہے وہ پر بچھاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پاؤں کے نیچے بھی بچھاتے ہیں، ہر اس بندے کے پاؤں کے نیچے بھی فرشتے پر بچھاتے ہیں جو دین کی ایک آیت سیکھنے کے لیے جو ہے وہ اپنے گھر سے سفر کرتا ہے، کسی عالم کے پاس جاتا ہے، اس کے پاس پہنچتا ہے، یہ تڑپ لے کر، یہ تڑپ نہ ہو آج مجھے یہ مسئلہ پیش آ گیا تو میں بھاگوں، میں یہ سیکھ کر آؤں، جب نہ بھی پیش آئے تب بھی دین کا کوئی مسئلہ سیکھنے کے لیے نکلیے، اور فرشتے جو ہے وہ آپ کے پاؤں کے نیچے جو ہے وہ پر بچھانے کے لیے جو ہے وہ تیار ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پہ فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ، عالم طالب علم جو علم حاصل کرتا ہے، جب انسان علم حاصل کرتا ہے تو آخر میں وہ عالم ہی بن جاتا ہے، جب علم وہ سیکھ لے گا تو وہ ایک عالم بن جائے گا۔ فرمایا یہ طالب علم اور یہ عالم دین یستغفر له من فی السماوات ومن فی الارض حتی الحیتان فی الماء، فرمایا آسمان اور زمین کی ساری مخلوقات اس آدمی کے لیے مغفرت کی اور بخشش کی جو ہے وہ دعائیں کرتی، آسمان اور زمین کی ساری مخلوقات اس کے لیے جو ہے وہ بخشش کی جو ہے وہ دعائیں کرتی ہے، حتیٰ کہ مچھلیاں سمندر میں اور بعض روایت میں چونٹیاں اپنے سوراخوں میں اور بلوں میں انسان کے لیے دعائے مغفرت اور دعائے رحمت جو ہے وہ کرتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے چوتھے نمبر پہ فرمایا لوگوں یاد رکھو العلماء ورثۃ الانبیاء، دین سیکھنے والے، دین سکھلانے والے یہ انبیاء کے وارث ہیں، یہ کسی عام ہستی کے وارث نہیں ہے، نبیوں کے وارث ہیں۔ اور نبیوں کی جائیداد کیا ہوتی ہے؟ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، انبیاء اپنے پیچھے کبھی درہم و دینار کی جائیداد چھوڑ کر نہیں جاتے، جتنا بھی دنیا میں نبیوں کا مال ہوتا ہے وہ بیت المال میں صدقہ خیرات کے طور پر جمع کر لیا جاتا ہے، وہ وراثت کے طور پہ تقسیم نہیں ہوتا، نبیوں کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، وہ علم کی تقسیم ہوتی ہے۔ انما ورث العلم، وہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں، فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، لوگوں جس نے علم لے لیا اس نے بہت بڑی دولت کا ایک حصہ جو ہے وہ لے لیا، دنیا کی عظیم اور قیمتی دولتوں میں سے ایک دولت کو جو ہے وہ حاصل کر لی، اس سے زیادہ قیمتی دولت دنیا میں کوئی اور موجود نہیں۔ یہ علم کی فضیلت میں ایک حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے کہ کس قدر اس علم کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ نبیوں سے ہمیں پیار ہے، نبیوں کی حرمت پہ ہماری جان بھی قربان ہے، ہم جو ہے وہ طرح طرح کے نعرے اور طرح طرح کی جو ہے وہ باتیں جو ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کیا نبی اپنے پیچھے جو میراث چھوڑ کر جاتے ہیں اس میراث کو، اس وراثت کو حاصل کرنے کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں؟ ہر دوسرا تیسرا یہاں پہ جائیداد کے جھگڑے ہیں، کون سا خاندان ہے جو جائیداد کے جھگڑوں سے بچا ہوا ہے؟ 2 روپے کی چیز ہے اور یہیں پہ پڑی رہ جانی ہے، انسان نے اگلے جہان کو سدھار جانا ہے، کسی نے لاکھوں کمائے، کسی نے کروڑوں کمائے، کسی نے اربوں کمائے، 1 روپیہ بھی اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ ہم جانتے ہیں جب کفن دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اس کو جیب بھی نہیں لگائی جاتی، کہیں بھول کر ہی کوئی روپیہ اس میں نہ ڈال دے، اس میں جیب بھی نہیں لگاتے ہیں، اور صرف سادہ
नया कपड़ा पुराने कपड़े में भी देते, शायद पुराने कपड़े में कोई रुपया पैसा पड़ा रह जाए तो वो भी उसके साथ ही चला जाए। साफ कपड़ा जो है वो बांधो, इसके साथ कोई पैसा नहीं जाना चाहिए, कोई नौकर, कोई चाकर, कोई मजदूरी, कोई मेहनत, कुछ नहीं साथ जाना। फरमाया ये दुनिया की दौलत तो यहीं पे रह जानी, इसके लिए क्यों भागे जा रहे हो? नबियों की जो विरासत है इल्म, जिसने आपके साथ कब्र में भी जाना है, उसको हासिल करने की कोशिश करो। इस विरासत को थोड़ा सा जो है वो लेने की कोशिश करो, ये इस कदर जो है वो मुहिम है। आप जानते हैं इस इल्म के बारे में अहले इल्म के बेशुमार अक़वाल हैं, मुख्तसर सा वक्त होता है, अपनी बात को तकमील तक पहुंचाना होता है। तो इमाम बिशर अल-हाफी रहमहुल्लाह और इमाम शाफी रहमहुल्लाह, इस तरह के बेशुमार उलमा से इस तरह का कौल जो है वो मनकूल है। वो कहते हैं हमें नहीं मालूम रूए जमीन पर इल्म हासिल करने से ज्यादा अफजल अमल कोई दूसरा मौजूद। नेकी के अमाल, नमाज है, फर्जी नमाजों के अलावा, फर्जी ज़कातों और हज्जों के अलावा, फर्जी इबादत के अलावा नफली इबादत में से फरमाया कोई अमल नेकी का, खा वो तहज्जुद की शक्ल में हो, जिक्र अज़कार की शक्ल में हो, तिलावत कुरान की शक्ल में हो, फरमाया किसी भी शक्ल में हो, हमें नहीं मालूम कि कोई अमल जो है वो इल्म हासिल करने से ज्यादा अफजल जो है वो हो सकता है। इसलिए कि इबादत, उसका नफा सिर्फ इंसान की अपनी जात को मिलता है। रात को तहज्जुद पढ़ता है तो उसे फायदा है, पड़ोसियों को तो उसका कोई फायदा नहीं, दूसरे तीसरे चौथे घर वाले को, मोहल्ले वाले को, कॉलोनी और मुल्क वाले को कोई फायदा नहीं। लेकिन जब इंसान इल्म हासिल करता है, उसका फायदा उसकी अपनी जात को भी होता है और उसका फायदा उसके चारों तरफ में अतराफरात को भी होता है। जहां जहां तक उसकी आवाज जाती है वहां वहां तक लोग उससे फायदा उठाते हैं। कई लोगों की जिंदगियों में इनकिलाब आ जाता है, कुफर से ईमान की शक्ल में तब्दील हो जाता है, बिदअत और खुराफात की शक्ल में बद जगह पर सुन्नत आ जाती है, डाके और चोरी की जगह पे ईमानदारी और दयानतदारी जो है वो आ जाती है, लूट मार की जगह पे इंसान लोगों का मुहाफिज बन जाता है, एक बोल बोलने की वजह से, एक कलमा जो है वो कह देने की वजह से। ये पीछे भी मैंने बतलाया था, यहाँ झाल में एक मस्जिद है, वहां पे एक आलिम जुमा पढ़ाया करते थे, नमाज पढ़ाया करते थे, और उसके बगल में पड़ोस में एक आदमी था जो चोर था, डाकू था, जानी था। कौन सी बुराई थी उसके जहन में जो उसके पास मौजूद नहीं थी? एक दिन ये हजरत मस्जिद से बाहर निकले और वो बंदा सामने से गुजर रहा था, उसे कहा, शायद रशीद नाम था, मुझे याद नहीं, कोई इसी तरह का नाम था, कहने लगे छीदिया तो कभी मस्जिद में भी आ जाया करो, ठीक है अपने काम करते हो, अपने धंधे करते रहो, और कभी मस्जिद में भी आ जाया करो, अल्लाह तबारक व तआला बड़ा गफूर रहीम है, सारे गुनाहों को माफ कर देता है। बस एक बोल, इतना सा बोल बोलना था, उसकी सारी जिंदगी बदल, उसकी सारी जिंदगी की काया ही पलट गई। वो ताइब हो गया और मस्जिद का नमाजी बन गया और मुत्तकी और परहेजगार बनकर जो है वो फौत हुआ। आप क्या समझते हैं उस बंदे की निजात हो जाएगी जो मुत्तकी बन गया है, जिसने उसकी रहबरी की है, रहनुमाई की है? वो कामयाब नहीं होगा। उसके जितने अमाल है उतना अजर इसको नहीं मिलेगा, यकीनन मिलेगा। ये है, इन उलमा ने कहा कि हमारे नजदीक रूए जमीन पर कोई नेक अमल ऐसा नहीं है जो इल्म हासिल करने का मुकाबला कर सकता। सबसे ज्यादा अफजल अमल जो है वो इल्म को हासिल करना है। और आप सल्लम ने हजरत अली से भी कहा था, ला यहदी अल्लाहु बिका रजुलन खैरुल लका मिन उमरिन नअम। फरमाया अली, तेरी ये बात से, तेरी जुबान से, तेरे कौल से अल्लाह तबारक व तआला एक बंदे को हिदायत दे दे, तेरे लिए अरब के अंदर सुर्ख ऊंटों से जो सबसे ज्यादा कीमती माल था, फरमाया उससे कहीं ज्यादा बेहतर। सुर्ख ऊंटों की तो कोई कीमत ही नहीं है, लेकिन तेरी वजह से अल्लाह किसी को हिदायत दे देता, ये तो तेरे लिए बहुत ज्यादा बेहतर। लोगों, ये इल्म जो है ये बड़ा खूबसूरत है और बड़ी अजीब शान दौलत है और बड़ी कीमती दौलत है, और दुनिया की कोई दौलत इस दौलत का जो है वो मुकाबला नहीं कर सकती। आप जानते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने
1,24,000 कम बेश जो अंबिया का सिलसिला बनाया है, वो सिर्फ इसी मकसद के लिए दुनिया में इल्म को फैलाया था। दुनिया में इल्म की बातें जो है वो की जाए, जो अल्लाह ने उनको इल्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी दिन रात एक कर दिया, न गली देखी, न चौक देखा, न बाजार देखा, न मंडी देखी, न खुशी देखी, न गमी देखी, न जिंदगी का इब्तदाई लम्हा देखा, न जिंदगी का आखिरी लम्हा देखा। हर वक्त आप जो है वो तबलीग कर रहे हैं, लोगों को इल्म फैला रहे हैं, लोगों को दीन की बातें जो है वो बतला रहे हैं। सारी जिंदगी यही काम करते रहे और आप फौत हो रहे हैं। उस वक्त भी मैंने जिक्र किया था पिछले जुमों के अंदर कि आपकी आवाज हलक में रुक रही थी, आपका गला और आपकी जुबान आपकी आवाज का साथ न दे रही थी, लेकिन आप फिर भी आप कह रहे थे लोगों नमाज न छोड़ना, लोगों नमाज की हिफाजत करना। ये इल्म जो आपके पास मौजूद था उसे नशर कर रहे थे। हज्जतुल विदा के मौका पर आपने कहा लोगों मुझे बतलाओ, जो खैर की बातें थी उसकी तरफ मैंने रहनुमाई कर दी है, जो बुराई वाली बातें थी उससे मैंने तुम्हें मना कर दिया है। सबने हाथ उठाकर कहा कि जरूर क्यों नहीं या रसूलल्लाह, आपने अदा ही नहीं कर दिया बल्कि हक अदा कर दिया है। उस वक्त आपने फरमाया था अल्लाहुम्मा शहद, या अल्लाह गवाह हो जा, या अल्लाह गवाह हो जा, तूने जो मुझे इल्म दिया था वो मैंने सारा इल्म जो है वो इन तक मुंतकिल कर दिया। लोगों को मनवाना हमारा काम नहीं है, लोगों को मनवाना हमारा काम नहीं है। दुनिया में इंकिलाब बर्पा कर दो, ये नतीजा है, लेकिन हमारा काम नहीं है। असल हमारा काम है लोगों की रहबरी करना, रहनुमाई करना, उनकी रहबरी कर दे, रहनुमाई कर दे, आगे उसे हिदायत देनी है, ये अल्लाह का काम। इनकिलाब पैदा करना है, ये अल्लाह का काम है। कितने ही नबी क़यामत के दिन आएंगे, उनके साथ एक बंदा भी नहीं हो, किसी के साथ एक बंदा होगा, क्या उन्होंने अल्लाह का पैगाम नहीं पहुंचा दिया? ये हमारा काम है कि दीन को सीखें और दीन को जो है वो आगे पहुंचाएं। ये वो काम है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मिशन शुरू किया था। सहाबा किराम ने, ताबेईन ने, आइम्मा दीन ने उसको जारी रखा। मक्का में दारे अरकम के नाम से एक मदरसा बना और मस्जिद नबवी में सुफ़ा के नाम से एक चबूतरा बना, जहां पे लोगों को इल्म दिया जाता रहा और फिर ये सिलसिले चलते रहे। और आज दुनिया में सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों की तादाद में मदारिस मौजूद हैं। गली गली में, रोडों पे, मुख्तलिफ महल्लों में खवातीन के, मर्दों के, हर जगह पे इल्म की रोशनी जो है वो फैलाई जा रही है। लेकिन अफसोस, इल्म हासिल करने वाले नहीं मिलते। देने वाले तो बहुत ज्यादा मौजूद है, मदारिस तो बहुत ज्यादा मौजूद है, लेकिन पढ़ने वाले बहुत कम मौजूद। हमारी कितनी नफरी है, कितनी तादाद है, कितनी आबादी है। आप स्कूलों की तरफ चले जाएं, इस मोहल्ले में कितने स्कूल हैं, और मदरसों की तरफ चले जाएं, कितने मदरसे हैं, आटे में नमक के बराबर भी नहीं। एक एक स्कूल की तादाद जो है हमारे एक शहर के मदरसों के तलबा की तादाद के बराबर हो। एक एक स्कूल, ऐसे ऐसे बड़े बड़े स्कूल मौजूद है जिनके अंदर बहुत ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। ये दुनिया का इल्म, ये इल्म नहीं है। दुनिया का इल्म इंसान को इंसानियत नहीं सिखलाता। दुनिया का इल्म इंसान का ताल्लुक अपने रब के साथ नहीं जोड़ता है। दुनिया का इल्म एक हुनर है, एक मिशन है, एक दुनिया का जरिया है कि आपने दौलत कैसे कमानी है, दुनिया में आपने दौलत कैसे कमाकर जीना कैसे है, लोगों की तिजोरियां कैसे खाली करनी और अपनी तिजोरी जो है वो कैसे भरनी है। ये साइंस हमें यही सिखलाती, ये इंजीनियर हमें यही सिखलाती है। कोई पायलट बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है। ये दुनिया का इल्म यही सिखलाता है कि माल कैसे कमाना है। लेकिन इंसान बनने का दर्स कौन देता है? ये कुरान और हदीस का इल्म देता है, ये मदारस देते हैं, ये दीन का इल्म देता है। इस इल्म को हासिल करना मेरा और आपका फरीजा है। इसी के बारे में मैंने जिक्र किया था, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। इल्म हासिल करना साइंस का ये फर्ज है
रियाजी का ये फर्ज है? बिल्कुल नहीं। कोई सीखता सीख ले, कोई नहीं सीखता ना सीखे। इल्म, दीन का इल्म जो है वो सीखना जो है वो फर्ज है। लिहाजा ये इल्म हमसे तकाजा करता है, लोगों इस इल्म की बिना पर आपने अमल करना है। अगर इल्म नहीं है तो अमल क्या करना? आज दुनिया में जितनी जहालत और गुमराही पाई जाती है, उसके बुनियादी असबाब में से एक सबब यही है कि जहालत मौजूद, इल्म है ही नहीं। आपने फरमाया था अल्लाह तबारक व तआला इल्म को लोगों से सीनों से नहीं निकालेगा। इल्म कैसे छिन जाएगा? नेक उलमा, मुत्तकी, परहेजगार, अहले इल्म दुनिया से रुखसत होते चले जाएंगे, हत्ता कि जाहिल लोग जो है वो बाकी रह जाएंगे। और जाहिल लोग मसनद पे बैठ जाएंगे और फतवे देंगे, और फिर वो खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे। आज टीवी के ऊपर और जो है वो नेट के ऊपर और फेसबुक के ऊपर और ट्विटर के ऊपर हमें बड़े मुख्तलिफ किस्म के मुफ्ती मिलते हैं जो हमें फतवा देते नजर आते हैं। तूने फलां बंदे के पीछे खड़े होकर जनाजा पढ़ा था, तेरा निकाह टूट गया। इस्तंजा जो है वो एहतियात से करना, वगरना तुम्हारा रोजा जो है वो टूट जाएगा। मारो घुटना और फूटे आंख, इसे कहते हैं ये इल्म। ये इस तरीके से नसर किया जाता है। ये जहालत है कि नमाज जनाजा पढ़ने का निकाह से क्या ताल्लुक है। मुसलमानों के गुरोह है, आपस में इख्तिलाफ हो गया है, फिरके जुदा जुदा हो गए, ठीक है, लेकिन एक आदमी ने अगर दूसरे फिरके के इमाम के पीछे नमाज जनाजा अदा कर लिया तो इससे निकाह टूट जाता है। ये किसने कहा? निकाह सवाए तलाक के या खुला के खत्म नहीं होता है। जब इंसान निकाह कर लेता है तो वो सारी जिंदगी तक बाकी रहता है, इल्ला कि इंसान मुर्तद हो जाए, बेईमान हो जाए, काफिर हो जाए। इसके अलावा निकाह नहीं टूटते। नमाज पढ़ने से निकाह टूट जाता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस्तिंजा करने से रोजा टूट जाता है। ये कौन सी हदीस का तर्जुमा किया जा रहा है? और आज एक दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों और लाखों की तादाद में ऐसे लोगों के फॉलोअर्स मौजूद हैं, उनके मुत्तबईन मौजूद हैं, उनके पैरोकार मौजूद हैं, आंखें बंद करके उनकी बातों को तस्लीम करते हैं। वजह जहालत, न खुद को पता है न उनको पता है। वो उनको गुमराह किए जा रहे हैं और वो गुमराह हुए जा रहे हैं। यहां पे जरूरत महसूस होती है कि इल्म हासिल करना मेरा और आपका दीनी फरीजा है। हम जिस मसले पर हमने अमल करना है, कम से कम उस मसले का इल्म हासिल करना मेरे लिए और आपके लिए फर्ज। चलो जिस मसले पर हमने अमल नहीं करना उसको ना सीखें, लेकिन जिन मसाइल पे हमने अमल करना है उनका इल्म हमारे पास होना चाहिए। रोजा रखना है, नमाज पढ़नी है, ज़कात अदा करनी है, हज करना है, उम्रा करना है, ये सारे मसाइल हमें सीखना जरूरी है और फर्ज है। जो जो मसला आपके सामने आता चला जाए कि ये मेरी जरूरत बन गई है, उसके बारे में अगर हम इल्म नहीं सीखते हैं और गलत अमल करते हैं, क़यामत के दिन ये जहालत हमारा उज़र नहीं बन सकती। हमारी गुमराही हमारे लिए बर्बादी और तबाही का जरिया बन जाएगी। इसी को मैंने शुरू में कहा था, जहालत जो है वो इंसानी जिंदगी की मौत है और इल्म जो है वो इंसानी जिंदगी की हयात है। इसके लिए जिंदगी मिलती है। लिहाजा मैं ये सबसे गुजारिश करूंगा कि इस दीन को सीखने की कोशिश करें, इस दीन के लिए मेहनत करें, खुद भी करें और अगर ना हो सके तो कम से कम ये हमारे मदारस जो दीन के हैं इनको सपोर्ट करें, इनको सपोर्ट करें। इनमें जो बच्चे पढ़ते हैं वहां पे अपना एक एक बच्चा ही भेज दें, अपने घर में एक एक आलिम बना दें। और हर आलिम के लिए जरूरी नहीं है वो खतीब भी बने, वो जो है वो जुमा भी पढ़ाए, वो नमाज भी पढ़ाए, कारोबार भी करे, इल्म हासिल कर ले, कारोबार की लाइन में चले जाए और वहां पे आप कारोबार हलाल का करें और लोगों को वहां पे मसला बताएं, कारोबार की ये शेख दुरुस्त नहीं है, ये कारोबार करना जायज नहीं है, ये जो है वो कारोबार किया जाता। शरीयत नहीं कहती जिसने इल्म सीख लिया वो जरूरी है मिंबर पे खड़ा हो। अपने बच्चों को इसलिए इल्म हासिल करवाएं ताकि वो आपके घर में आपको मसला बतला सके, अपने बीवी बच्चों को मसला बतला सके, अपने कुलीगों को और अपने साथियों को मसला बतला सके। यही दीन का मकसद है, यही तबलीग है, यही मकसूद है।
हर बंदे का स्टेज पे खड़े होना या मुकम्मल इल्म हासिल करना ये जरूरी भी नहीं। लिहाजा अपना एक एक बच्चा मदरसों में दाखिल कर, नहीं दाखिल करवा सकते, कम से कम एक बच्चे की मदद करें, एक बच्चे का जिम्मा ले लें कि फला बच्चे को तालीम दिलवानी है और दीन की दिलवानी है और इसके ऊपर जितना खर्चा आएगा उसको मैं बर्दाश्त करूं। ये काम कीजिए। ये मदारिस का आगाज हो रहा है। हमारा साल जो है वो शव्वाल से शुरू होता है और शाबान पे खत्म हो जाता है। दीनी मदारिस, दुनिया के स्कूल कॉलेज में छुट्टियां छुट्टियां हैं और आजादी है और जो कुछ यूनिवर्सिटियों में हो रहा है वो किसी से मख्फी नहीं है। यहाँ पे आपको काल अल्लाह और काल रसूल की सदा जो है वो बुलंद होती नजर आती है। आपको यहाँ पे ये सबक मिलता नजर आएगा, लोगों नमाज पढ़ा, लोगों झूठ ना बोला करो, लोगों अमानत इख्तियार किया करो, लोगों पे जुल्म न किया करो। ये सदाएं मदरसे की चौखट से जो है वो आपको सुनाई देती हैं। लिहाजा यहाँ पे अपने बच्चों को भेजें भी और इनको सपोर्ट भी करें, इनको तावन की जिस तरह की जरूरत हो वो तावन करें। इसलिए ये हमारे साल का आगाज है। आपसे गुजारिश है कि अपना हर खानदान का आदमी अपना एक एक बच्चा जरूर दीन के लिए वक्फ करे। और दीन के लिए वक्फ करने का ये मकसद नहीं है कि आप जरूर उसको मौलवी ही बनाएं। बाज लोगों के ज़हन में होता है कि मौलवी पता नहीं क्या चीज है, हमने जरूर मस्जिद की कमाई खानी, मदरसे की कमाई खानी। ये एक अलग मसला है, इसमें मैं बात नहीं करता, लेकिन उसको इल्म सिखलाइए और कारोबारी बना दीजिए, कोई मसला नहीं है। इल्म भी सीखे और कारोबार भी सीखे। सऊदी अरब में, मिस्र में बहुत से ऐसे लोग हैं जो डंगर डॉक्टर हैं, लेकिन हमारे उलमा से उनके पास इल्म जो है वो ज्यादा है। हमारे उलमा से उनके पास इल्म ज्यादा है, यानी वो दुनिया की लाइन में चले गए लेकिन दीन भी पढ़ा है। दीन सीखे, दीन हर बंदे का फरीजा है। लिहाजा जरूर इन मदारस के साथ अपना ताल्लुक जोड़िए और अपने आप को कता ताल्लुक न रखिए, इससे मुंह न मोड़िए, वगरना कल क़यामत के दिन हमसे पूछा जाना है कि मेरे बंदे जिंदगी बता, जिंदगी कहां पे गुजारी, कौन से काम करता रहा, जवानी कहां पे गुजारी, कौन से काम करता रहा। इसलिए इन मदारस के साथ ताल्लुक जोड़ना मेरा और आपका दीनी और अखलाकी फर्ज बनता है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें ये दीन और इल्म जो है वो सीखने की तौफीक नसीब फरमाए और जो सीखा दीन है अल्लाह ताला उसके मुताबिक हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। ये जो मदारस है अल्लाह ताला इनको रहती दुनिया तक जो है वो आबाद फरमाए और इनके रास्ते में जो मुश्किलात हैं, रुकावटें हैं, अल्लाह ताला उनको दूर फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।